Yes, good morning, students. In economics, yesterday we completed quartile division and I have given you 5 numericals to complete. Hope you all have completed that numericals. And today we are going to start our new topic, that is mean deviations. Very simple topic. Deviations you can take from mean, median and mode. तीनों से आप deviations लेकर पहले calculate करना पड़ेगा आपको mean, फिर median and then mode. बट आपके syllabus में सिर्फ deviations है from mean और median. तो mode को आप consider नहीं करोगे. Clear बच्चे? So first of all, mean deviation from mean. As we know, mean is indicated with this sign. And firstly, in this there are three series: individual, discrete and frequency distribution. In individual series, the first step is to arrange the data. ठीक है, आपने अरेंज द सीरीज को डिस्क्रीट डिसेंडिंग और असेंडिंग में अरेंज करना है. देन मीन डेविएशंस, इफ यू हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन, you have to write like this: mean deviation from mean, and you have to calculate mean, and the first next step is deviations taken from mean, like this. And using these two straight lines, that indicates that ignoring negative sign. ठीक है, इसमें हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे. सिंपल आपने सिर्फ डेविएशंस लेनी है फ्रॉम अ मीन. सो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट मीन. दैट you can calculate it by direct method, shortcut method, any method you can calculate, and take the deviations from mean, then over number of items. Very simple. Simply आपने calculate mean कर, arrange the series, then calculate mean, then take the deviations, that is x minus mean. Then you will get deviations from mean over and indicate with number of items. And coefficient of mean deviation is equal to mean deviation from mean over mean. And same formula is considered when we are taking the deviations from the median. Similarly, अगर आप median से deviations ले रहे हो तो first of all you have to calculate median, then take deviations from median, then you have to write d, m is here, then over number of items. Rest is same. Clear बच्चे? Then in individual series there is only one items are given, that is deviations taken from the mean. और मैं एक लर्निंग बाय डूइंग में आपको करवा देती हूँ बच्चे. और एक चीज़ और माइंड में रखना, अगर आपके मीन फॉर एग्जांपल पॉइंट्स में आ रहा है, फॉर एग्जांपल 4.8 समथिंग आ रहा है, तो यू कैन टेक 5 एज ए मीन. तो पॉइंट्स को इग्नोर कर देना, क्योंकि अगर पॉइंट्स में कंसिडर करोगे तो आपका वो कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो आपकी आंसर क्या है, रॉन्ग भी हो सकता है. क्लियर बच्चे? सो आफ्टर पॉइंट, अगर पॉइंट की बात 5 के अबव है तो नेक्स्ट डिजिट ले लोगे, अगर 5 के बिलो है तो वो सेम डिजिट ले लेना बच्चे. ठीक है. सो नेक्स्ट लर्निंग बाय डूइंग in individual series is 47, 50, 58, 45, 53, 59, 47, 60 and 49. So first of all we have to arrange the series, that is 45, again 47, 47, 49, 50, 53, 58, 59 and 60. This is, you have given the statement and you have to calculate mean deviations using median and a mean. So first formula of the mean is summation x over n. Summation x is equal to, that is sum of all this 468 over number of item is 9
9. That means your median mean is 52. The next step is you have to calculate deviations d mean, that is x minus mean. और यहाँ पे अपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, दैट इंडिकेट्स कि आपने प्लस माइनस साइन को कंसिडर नहीं करना. 52 is our mean. Then take the deviations. 7, then 5, 5, 3, 2, 1, 6, 7 and 8. Simple. Then sum of deviations from mean is equal to 44 and put the values in this formula, that is 44 divided by 9, 4.88. ठीक है बच्चे, clear? Similarly, if you have to ask to calculate the mean deviations from median, तो इसी सीरीज का आपने मीडियन कैलकुलेट कर दिया, दैट इज n+1/2, n+1/2. Then number of item is 9 + 1 10/2. Fifth item 1 2 3 4 5. फिफ्थ आइटम मीन्स आपकी 50 आपका मीडियन आ गया. 50 से आप डेविएशंस लोगे और जो आपका आंसर आएगा उसको, जो आपका समेशन आएगा उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना. क्लियर बच्चे? और इन डिस्क्रीट सीरीज में क्या है बच्चे, यू हैव गिवन अ फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. अब सिंपल फार्मूला सेम है, सिर्फ क्या वर्ड ऐड हो जाएगा, एफ, दैट इज मीन डिवीजन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू एफ समेशन डी मीन ओवर समेशन एफ. सिंपल आपने मल्टीप्लाई एफ से करनी है और नंबर ऑफ आइटम्स की जगह समेशन एफ. सिमिलरली इन मीडियन कैलकुलेट करोगे, जो डेविएशंस है उसको एफ से मल्टीप्लाई करोगे ओवर समेशन एफ. रेस्ट इज सेम. ठीक है. सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में भी सिंपल ही है. आपको फर्स्टली क्या करना है, कन्वर्ट इनटू डिस्क्रीट सीरीज बाय टेकिंग मिड वैल्यूज. आपने इसकी मिड वैल्यूज ले लेनी है. फॉर एग्जांपल आपको 10 to 20 गिवन, इट मीन्स 15 आ गया, 15 25 35 सो ऑन, और वो आपकी क्या बन जाएगी, डिस्क्रीट सीरीज विद फ्रीक्वेंसी. सिमिलरली आपने पहले मीन कैलकुलेट करना है, जैसे कि अर्लियर आप कर ही चुके हो. फिर आपने मीन से डेविएशंस लेनी है, और डेविएशंस इस चीज़ को माइंड में रखना बच्चे, फ्रीक्वेंसी से नहीं लेनी, हमेशा एक्स माइनस मीन और एक्स माइनस मीडियन. फ्रीक्वेंसी को आपने कंसिडर नहीं करना. ठीक है. फ्रीक्वेंसी सिर्फ आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है बच्चे. और इसके रिलेटेड लर्निंग बाय डूइंग में डिस्क्रीट सीरीज की भी करवा देते हैं बच्चे आपको एक, फिर आपको क्लियर हो जाएगा. दैट इज फर्स्ट लर्निंग बाय डूइंग 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Then you have given frequency 8, 16, 18, 22, 14, 9, 6, 7. Sum of this is 100. अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीन का, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ. चाहे आप शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो कि कोई भी एज्यूम कर लिया, ए प्लस समेशन एफ एक्स स्लैश ओवर समेशन एफ डी एक्स ओवर समेशन एफ, वो भी कर सकते हो. ठीक है. सिंपल एफ एक्स 40, 160, 270, 440, 350, then 270, 210, 280. Sum of this is 2020 over 100. It means कि 20.2. अब 20.2 मीन्स यू हैव टू टेक ओनली मीन इज इक्वल टू 20 आप लोगे. अब डेविएशंस किससे लोगे आप, एक्स सीरीज से. ठीक है. नॉट द फ्रीक्वेंसी. सो डी डेविएशंस फ्रॉम मीन एक्स माइनस मीन, दैट इज 20 minus 5, 15,
15, then 10, 5, 0, 5, 10, 15 एंड 20। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा हमारा, FD(x), इसको मल्टीप्लाई करोगे आप और जो आपका समीशन आएगा डिवाइड बाय 100। सो सिंपल। तो ये खुद कैलकुलेट कर लेना बेटा, मल्टीप्लाई विद F और पुट द वैल्यूज मीन डिविजन्स फ्रॉम मीन इज इक्वल टू समीशन FD मीन ओवर समीशन F। सिमिलरली अगर आप मीडियन से कैलकुलेट करोगे तो पहले अपने मीडियन कैलकुलेट करना है, फिर डेविएशंस फ्रॉम मीडियन लोगे, फिर उसको F से मल्टीप्लाई करोगे, जो समेशन आएगा उसको डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर बच्चे। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ में आपने कन्वर्ट करना है क्लास इंटरवल्स को पहले डिस्क्रीट सीरीज़ में बाय टेकिंग द मिड वैल्यूज़ एंड कंप्लीट ऑल द न्यूमेरिकल्स। ठीक है बच्चे। सो आपकी बुक में नाउ योर लास्ट टॉपिक इज़ लेफ्ट, दैट इज़ द स्टैंडर्ड डिविजन्स, वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। सो हेयर यू हैव टू कंप्लीट द न्यूमेरिकल्स अप टू 5 आपने कर चुके हो बेटा, दैट इज़ व्हाट रिलेटेड विद द क्वार्टाइल डिवीजन एंड देन you have to complete up to 12 numericals। ठीक है बच्चे, 1 to 12 आपके numericals complete होने चाहिए with mean, coefficient using median and mean। clear बच्चे। and if you have any doubt regarding any numericals you can ask। thank you बच्चे and have a nice day।